if an enlightened person dies, so does he born again? If he doesn't want to do something, he doesn't have any. हिंदी अगर कोई एनलाइटेंड पर्सन, मोक्ष पाया हुआ पर्सन मरता है, तो क्या वो फिर जन्म लेगा या उधर ही खत्म हो वैनिश? एक अगर मुक्त व्यक्ति जो है उसकी मृत्यु होती है तो व्यक्ति तो मुक्त होता नहीं है, व्यक्तित्व से मुक्ति होती है. पर्सन इज नेवर एनलाइटेंड, पर्सन इज नेवर लिबरेटेड. लिबरेशन इज फ्रॉम इंडिविजुअलिटी, फ्रॉम पर्सनैलिटीज. But when he leaves everything, he doesn't have anything attachment. Then See, what happens is when he is not there, how does it matter whether he is reborn or not reborn? जब वो है ही नहीं तब क्या फर्क पड़ता है कि वो पैदा हो या वो नहीं हो. हाँ, बाला इधर आ. How will you enlighten him? ऐसा घूम जाओ. How will you enlighten him? When he is enlightened, he will become God. This is Bala. We'll bring one more donkey over here. How will you make a donkey a horse? Is it possible? ये बाला है. हम एक गधे को लेकर आए और वो गधे को तुम घोड़ा बना सकते हो, पेंट करके उसको बेच सकते हो कि ये घोड़ा है? हा? नहीं बेच सकते ना. वो शायद संभव हो, लेकिन मनुष्य को भगवान बनाना असंभव है. It might be possible to turn a donkey into a horse, but to turn a human being into God is impossible. Because there are only 3 enlightened beings on the planet. क्योंकि मुक्ति प्राप्त किए हुए केवल और केवल 3 व्यक्ति इस पृथ्वी पे है. एक तुम्हारे जैसे जिनको इस जीवन में मुक्ति मिली है. 1, people like you who have received enlightenment in this lifetime. Others who have been enlightened and are reborn, अवतार पुरुष. दूसरे वो जिनको मुक्ति मिली है और वो फिर से पैदा हुए, अवतार पुरुष. और तीसरे इसके जैसे जिसको मुक्ति मिली हुई है पर उसको पता नहीं है कि उसको मुक्ति मिली हुई है. वो है ही भगवान, इसके लिए उसको मोक्ष देना पॉसिबल है, पर वो समझ रहा है कि मैं इंसान हूं. The third people are like him who are enlightened. Everyone and everything is enlightened because everyone and everything is God. But they don't remember it. The only difference between them and us is that we remember and they don't remember. हमारे में और उनमें उतना ही फर्क है कि हमको याद है, उनको याद नहीं. जिस दिन तुम बोलोगे कि मुझे मुक्ति मिली है, मैं जन्म क्यों लूं, उस दिन तो तुम मुक्त हो ही नहीं, क्योंकि तुम हो. और तुमने ये समझ लिया कि मैं मुक्त हूं, मैं भगवान हूं, बाकी सब गधे के बच्चे हैं. The day you feel that you are enlightened and others are not, you are absolutely not enlightened because you are there. And enlightenment is knowing that everything is God. Then why is he not God and why are you only the God? And why will he come back to life and why will you escape? It's stupidity to understand that. Secondly, you believe you are a divine being having human experiences and they believe that they are human beings having divine experiences. That is the difference. That's the only difference. उनको लगता है कि तुम ईश्वर हो, ये मनुष्य के शरीर में बंध गए. उनको लगता है वो मनुष्य है और वो ईश्वर का अनुभव कर रहे हैं और कोई फर्क नहीं है. वो टेबल उल्टा हो गया ना जिस दिन, उस दिन चेंज हो जाएगा सब कुछ. इच्छा उभारी कन्याकुमारी, पुरानी बीमारी. जब तक ये इच्छा रहेगी कि वापस जन्म ना हो, इच्छा आ गई, वो इच्छा ही
फिर से जन्म देगी. Till you desire that I don't want to take rebirth. जा. तू हर बार इसको हिलाता क्यों है? Till that time, there will be no escapism from birth and death. Enough, Guruji. Now I don't want to be reborn. See you in next life. You must understand that however enlightened you may be, you don't know. तुमको एक बात तो कबूल करनी ही होगी कि तुम कौन से भी स्थल पे हो मोक्ष के, तुमको नहीं पता. मुझे कोई कहता है कि भैरव स्थिति में आके फिर से जन्म होता है कि नहीं, तो उसके आगे एक बिंदु है, ऐसा सुना है. वो बिंदु पे आके फुल स्टॉप हो जाता है. तो वो कैसे आता है, कैसे करने का, वो नहीं पता. वो नहीं पता. वापस आप आओगे तो हम आए आपके साथ. विल यू कम बैक? Only then we will come back behind you. We need someone to again re-enlighten us. Don't know. Don't know. Whether I will come back or I will not come back, whether you will be with me or I will be with you, I don't know. If you get into a mother's womb, you will lose your enlightenment. And once, if a lion tastes human blood, no amount of danger is going to stop him from going to the town. एक बार तुम माँ के गर्भ में गए, तुम अपना मोक्ष भूल जाओगे. और एक बार अगर शेर ने खून चख लिया तो कितना भी खतरा हो, वो गांव की ओर जाएगा ही जाएगा. वो आदमखोर बन गया, आदम को खाने वाला बन गया. वो गांव में जाएगा, शहर जाएगा, बच्चों को, इंसानों को पकड़ के खाएगा. जवान पे स्वाद लग गया, आदत लग गई. एक बार मोक्ष आपने चख लिया, आप कहीं से भी मुझे ढूंढ ही लोगे. कितना भी खतरा हो, कहीं से भी ढूंढ के आ जाओगे. मोक्ष नहीं भी मिला, एक बार समाधि भी चख ली, तो कहीं से भी ढूंढ लोगे. और वही तुम्हारी प्यास मुझे वापस लाएगी, भले भैरव स्थिति में हो. Once you have tasted self-realization, not only self-realization, even if you have tasted samadhi once in my presence, no matter however the danger may be, no matter however impossible it may look, you will find me. You found me, you will again find me. Have you found me? You have found me. I have found you. And that thirst of yours to find me will also not allow me to not come back. And when I will, I also have to come back. So, trust me, I am in a favor that you don't come back. तुम्हारे से ज्यादा मुझे खुशी होगी अगर तुम वापस ना आओ, क्योंकि तुम्हारे लिए मुझे आना ही पड़ेगा. ये डोरी बंधी हुई है. इसीलिए कहते हैं ना, जो मतलब नारायण एवरी टाइम जन्म लेते हैं, सेम थिंग. नटराज आते हैं बार बार. ये सब नट कहाँ जाएंगे, नटराज नहीं आएंगे तो. Narayan has to come back, Nataraj has to come back. All these nuts of mine, I am your king, you nuts.
I have to come back for you. And you find me, I will find you. We find each other. Still I am searching. Still I am finding. There are people who have not come. There's one musician, a very good musician. I don't know where he or she is. एक बहुत ही अच्छा संगीतकार है, या लड़का है या लड़की पता नहीं, पर वो कहाँ है मुझे पता नहीं। वो आने इसी जीवन में आना था, अभी तो अपने जाने का टाइम आ गया, तो वो आ नहीं रहा है। It's time to leave now, but that musician is not coming. Can't find. तो 50 तो क्रॉस हो गया ना, 50 तो क्रॉस हो गया ना, 52 है ना, तो तो उसके लिए फिर रुकना पड़ेगा ना, उसके लिए फिर रुकना पड़ेगा। आप 52 ही हो। How silly is that? My lifespan is 52 this lifetime, but if I don't find that donkey, I have to wait. नहीं, आप एज में यंग हो। I am 50. I am young, but 52 is final. 2 years more to go. So 52 वर्ष की उम्र है, 2 वर्ष बच गए, अभी तक वो आया नहीं गधा। जय गुरुदेव, जय माँ। क्या आपको पता है आप किसी भी इंसान का मन पढ़ सकते हो, उनके शारीरिक और मानसिक दुखों का निवारण कर सकते हो? जी हाँ, यह बिल्कुल सही बात है। हमारे प्रिय गुरुदेव डॉक्टर श्री हितेश गुरुजी ने इसका आविष्कार किया है। किसी भी इंसान की आभा आप बिना किसी यंत्र के बहुत ही आसानी से देख सकते हो। अगर आपको यह सब कुछ सीखना है तो हमारे आने वाले पाठ्यक्रम आभास सर में आप शामिल हो जाइए। और आपको पता है इस पाठ्यक्रम में आपको बहुत ही शक्तिशाली और अद्भुत मंत्रों की दीक्षा प्राप्त होगी। तो फिर देर किस बात की, नीचे दिए गए भ्रमणध्वनि क्रमांक पर आप कॉल करके अपना जल्दी से जल्दी नामांकन करवा दीजिए। हरिओम तत्सत आदेश। I was before millions of years before this earth went in water and then came back again from the water. I've seen that life. I was a saint who was enlightened. I would only wear one cloth on my waist. मैं जन्मों पहले, जब ये पृथ्वी पानी में गई उससे भी पहले मैं एक साधु था। मेरी पास्ट लाइफ के बारे में बता रहा हूँ। और मैं एनलाइटन था, और मेरे जितना एनलाइटन उस समय में कोई नहीं था। मैं सिर्फ एक कपड़ा अपनी कमर में पहनता था और इधर गांठ मारता था उसको। और somehow मुझे इंट्यूशन आ गया कि मेरा एनलाइटमेंट खो जाएगा, और खोने के बाद करोड़ों जीवन तक मुझे वापस नहीं मिलेगा। तो बेहतर है कि मैं अपने एनलाइटमेंट को बचाऊं। तो इसके लिए मैंने वही किया जो बाकी सब साधु करते, भाग गया। I got a strong intuition that I will lose my enlightenment. And to save my enlightenment, I did the same stupidity what Vinayak is trying to do. Escaped. Ran away from people. He does not want to come back to life. I never wanted to be amongst living people. I found a deserted place where there was only one tree. I said I will eat the leaves of this tree and stay alive. भाग गया एक सुनसान जगह पर, जहाँ पे एक पेड़ था। वो पेड़ से पत्ते तोड़ के वो खा के मैं जीवित रहूंगा, मेरे को और कुछ नहीं चाहिए। मैं वहीं पे रहने लगा। वहां पे एक और गधा आया। ये There one donkey came and he screwed my millions of life, this guy. He was a young boy. He came and he said, I have heard your name and I have found you with difficulty and I want enlightenment. I said, sit, I will teach. वो आया, उसने कहा मुझे मोक्ष चाहिए, मैंने आपका नाम सुना है, बहुत मैं ढूंढा हूँ आपको, बहुत मुश्किल से आप मिले हैं, मुझे मोक्ष चाहिए, मुझे दया आ गई।
और दया डाकन को भी खा जाती है, हमको कहाँ छोड़ेगी। मैंने कहा बैठ, मोक्ष दिलाता हूं। अब इसके आगे तो झाड़ भी नहीं है, भाग नहीं सकते इसके आगे। तो ये लड़का, ये झाड़ और झाड़ पे रहने वाला एक पक्षी का कपल, उसमें से वो एक पक्षी, वो चिड़िया जैसा छोटा सा पक्षी था, थोड़ा कलरफुल, वो गाता था मधुर गाने। वो नर पक्षी, वो झाड़ और ये लड़का, ये तीन मेरी ज्ञान, मेरी बातें सुनने लगे। और मेरे को मालूम पड़ गया कि इसके साथ साथ में झाड़ और वो पक्षी, नर पक्षी जो है, वो भी इसका फायदा उठा रहे ज्ञान का। एंड I found out that with this boy, this tree and that male bird are also taking advantage of this knowledge. I said, it doesn't matter. Let me enlighten all of it. But they were not getting enlightened. कुछ भी करके उनको मोक्ष नहीं मिल रहा था। मैंने कहा तुम लोग इधर रहो, अब मेरे पीछे आना ना, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। और मैं आगे चला गया कि मुझे मालूम पड़ गया कि ये तीन की वजह से ही मैं फंसूंगा, और जब तक ये तीन को मैं मुक्ति नहीं दिलाऊंगा मैं फंसा रहूंगा। आई केम टू नो दैट till and until I don't liberate these three people, I will not be escaping from cycle of birth and death. And so I had to cut off all my attachment with these three people, and I went ahead. But these people cried over there and complained that our Guru left us. ये तीन पर वहां पे रोए, और रोकर उन्होंने वहां पे अपना दिल खाली किया कि हमारा गुरु हमको छोड़ के चला गया। और वो हाई मुझे लग गई। अब वो हाई को लगाने के लिए एक और कैरेक्टर है जिसका नाम नारद मुनि है। To make sure that that curse reaches me, there is one idiot postman of God. He did the rest. That time the Trinity was Brahma, Indra and Prajapati. The Greek or the Egyptian Trinity. उस वक्त जो त्रिदेव थे वो थे ब्रह्मा, इंद्र और प्रजापति। उनसे भी बड़ा मेरा मोक्ष था। And there was a war, there was a fight, and they were changing the Trinity. And the new incoming gods wanted followers, powerful followers, would spread their name. और जो नए भगवान आ रहे थे, त्रिदेव आ रहे थे, देवी देवता आ रहे थे, उनको फॉलोवर्स चाहिए थे और पावरफुल फॉलोवर्स चाहिए थे कि जो उनका नाम फैलाए। तो नारद मुनि ने जाके शिव की शक्ति को बोल दिया, सती को बोल दिया कि ये साधु अगर तुम्हारे भक्त बन जाए तो पूरी ब्रह्मांड में, पूरे विश्व में तुम्हारी पूजा होगी। That messenger of God, that postman, he went and told Sati, the wife of Shiva. At that time Shiva keep changing, Narayan keeps changing, Shiva, they keep changing. So that time Shiva, that wife Sati, Narad, the postman of God, said that if this sadhu is the most enlightened being on the universe, if he becomes your disciple, your follower, there will be masses all over the universe following you. Because when you become enlightened or when you are teaching, Shambhu will agree to this. It's not only people who are in the class who are listening. Not only spirits or deities who are listening, people from every planet, every corners of universe and from countless universes come to listen. जब एक मुक्त व्यक्ति जिसके पास अपार ज्ञान है वो जब बोलता है, तुमको लगता है ये इतने लोग, ये इतने यहाँ पे बैठे, बस इतने लोग सुन रहे, नहीं,
भूत प्रेत देवी देवता ये ब्रह्मांड से, ये ग्रह से, दूसरे ग्रहों से, अनंत कोटि ब्रह्मांड से लोग आते सुनने को और ज्ञान प्राप्त करते। तो कहा इसको चेला बना लो, तो अनंत कोटि ब्रह्मांड इसको सुनता है, तो सब आ जाएंगे। तो जहां नई जगह पे भागा वहां पे घास और झाड़ दोनों मिल गया। मतलब वो चलो उससे अच्छी जगह मिली, जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो वहां सती आ गई, बोलती मैं तेरे पे खुश हूँ, वरदान मांग। मैं बोला मैं किया ऐसा क्या माँ कि तू वरदान दे रही है? नहीं चाहिए, चल। दूसरी गलती। So where I went after abandoning this people, there was grass as well as a tree or many trees. And there appeared Sati and she said, I said everything happens for the best. I got a better place. That was a deserted place. There came Sati. Sati said, I am happy with you. I want to give you a boon, ask for a boon. I said, I have done nothing to ask for a boon and I don't want it. Please go. Second mistake. She said, how dare you insult me? And she turned me into a goat and said, you will be sacrificed. उसको क्रोध आ गया, तो बोला अच्छा अभी तू बकरा बन, घेटा बन, भेड़ बन और तेरी बलि चढ़ेगी। तो I became a goat but still enlightened. मैं बन गया बकरा लेकिन फिर भी मुक्त। बोला मजा आ रहा है? माँ ने बोला माँ बहुत मजा आ रहा है। पहले तो झाड़ पे चलना पड़ता था, हाथ पैर छिल जाते थे पत्ते तोड़ने के लिए, अभी घास खा के ही पेट भर जाता है। Before, when I was a human, I had to climb the tree to break the leaves, and now my hands and legs would get bruised, but now I can eat the grass and that's enough for me. So wait, I will show you. Now you become a camel. माँ ने बोला अभी तेरे को दिखाती हूँ, अभी तू ऊंट बन जा। ऊंट बन गया। बोला अभी मजा आ रही है। वो बहुत मजा आती है। घास खाना है तब घास खाओ, पत्ते खाना है तब पत्ते खाओ। I said very much fun. But before I was a goat, I was thinking how tasty the leaves would be. Now when I want to eat grass, I will eat grass. When I want to eat leaves, I will eat leaves. It's fun. And then it kept on happening and she kept converting me from one thing into another. ऐसा होते रहा, एक में से दूसरे में मेरा परिवर्तन वो करते रही। तो उसने बोला बेटा तू मानेगा नहीं अपनी माँ की बात, तू एक वरदान मांग तो ले। बोला जो मांगूगा वो देगी माँ? बोला हाँ पक्का दूंगा। She said, you will not listen to me. You will not, ask for a boon from your mother. Am I so bad? She started, hitting on the emotional notes. I said, okay, you have to give then whatever I asked for. She said, okay, I'll give. I said, I want to ask a boon from you that you ask a boon from me. Third mistake. And I was dead. मैंने कहा माँ मैं ऐसा वरदान मांगना चाहता हूं कि तू मेरे पास वरदान मांग चल। ये तीसरी गलती और ये समाप्त हो गया। करोड़ों जीवन लग गए। उसने बून मांग लिया, उसने वरदान मांग लिया कि तू मेरे गर्भ में बच्चा होके पैदा हो, मेरे गर्भ से बच्चा होके पैदा हो। She said that you will be born to me as my son from my womb. I said, okay, given this boon to you. She conceived me and she was angry for some stupid reason. She turned into Kali and she jumped into fire. And I was in the womb and she died. मैं उसके गर्भ में धारण हुआ, उसको क्रोध आ गया, उसने जीभ बाहर निकाल दी, काली बन गई और कूद गई आग में।
और मर गई, और मैं उसके गर्भ में, मेरे को नारायण ने उसके गर्भ से निकाला और कमल के पत्तों में रखा, टेस्ट ट्यूब बना के, कमल के पत्तों का टेस्ट ट्यूब बेबी बना है। मेरे 6 मुंह हो गए, मुझे गंगा के पानी में नीचे डुबाया गया, छुपाया गया, वॉरियर बनाया गया, क्या क्या किया गया, क्योंकि किसी को वरदान मिला था कि मैं ही उसको मार पाऊंगा। What stupid experiments happened with me? They made a test tube of a lotus leaf and put me inside the water of Ganges. And I was baked in different places that I become so strong because I had to kill a demon who had got a boon that he will be only killed by me. And that is how I lost my enlightenment. And then after millions of lifetimes, when I was actually out, my stepmother, Parvati, she also cursed me. That till I don't learn Kala Tantra, I will not be liberated. उसके बाद मेरी सौतेली माँ दूसरी आई पार्वती, उसने भी श्राप दे दिया कि जब तक कौल तंत्र नहीं सीखूंगा तब तक मुक्ति नहीं प्राप्त होगी। किया है कौल तंत्र? हाँ? नहीं, अभी सीखा। तो जिसको फिर गंदा समझते थे, पाप समझते थे, फिर वो सब एक्सेप्ट करना पड़ा, सीखना पड़ा, फिर मुक्ति होगी। ये झंझट में जब मुक्ति हुई तब मालूम पड़ा कि पहले वो 3 गधों को पकड़ो। तो एक तो बचपन से ही था, इसको मुक्ति दिला दी, इसको चीटिंग ही की, मतलब इसको ये लाइफ में मुक्ति थी ही नहीं, इसको देने के लिए चीटिंग की, कलेक्टिव एनर्जी बनाई, बोला चलो सबको देते, नहीं तो ये जंजाल कौन पालेगा, ये तुम लोग पालने लायक हो क्या। तो इसको मुक्ति दिलाने के लिए चलो कलेक्टिव एनर्जी से ही होगी, नहीं तो इसका ये लाइफ टाइम में तो लिखा नहीं है, और जब तक ये नहीं जाएगा अपन नहीं जा पाएंगे। इसको ढूंढो, एक हो गया, अभी झाड़ को ढूंढो और पक्षी को ढूंढो। तो पक्षी तो आ गया, वो जागृति कजारिया, वो पक्षी तो उसको देख के मैंने पहचान लिया, आंख में देख के बोला ये तो वही पक्षी आ गया, उसको मुक्ति दिला दी। वो भी नहीं आ रही थी, मैं उसको बोला एक दिन, बोला क्या है, बोला इधर आ तेरा रीडिंग करता हूँ 1 घंटे का टाइम लेके। तो बोलता है अपना रीडिंग हो गया 3 महीने पहले, ये साल का। मैं बोला मेरे को नया कुछ तेरे बारे में मालूम पड़ा। आगे बिठा, the first one was this, the boy. Then I found the bird, the female. She's also my disciple and she's also a guru. She's having her own disciples. Called her, God gave her enlightenment. Created this big NGO, collected you people, because it wasn't possible to give him enlightenment like that. We needed collective energy. So he was one day complaining, I want. I said, okay, come on, let's make an NGO. And we made a NGO called Vidya. And then I said we will start. There was a NGO already, but we registered it and we said we will include many people. We'll start. Now that tree is missing. But I know somewhere that tree is a musician. वो झाड़ कहीं है। जब तक वो झाड़ नहीं मिलता तब तक तुम लोगों को तो मैं झाड़ नहीं सकता हूं अपने दामन से। उसको ढूंढना है, पर टाइम कम है। We have to find that tree and time is very less. Once that comes, once that is enlightened, then all is set. Then we are all ready to wind up, unless and until someone else does not come ask for a boon. वो उतना हो गया ना, तो बस फिर शांति, फिर कोई झंझट नहीं। जब तक कोई नया नहीं आया और लगता है अभी आएगा, अभी तो जो हिसाब से धर्म झगड़ा कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि
नए देवी देवता फिर से आएंगे। तो थोड़ा सा बच के रहना सब लोग। बाकी महामाया आई कोई भी स्वरूप में तो उससे तो कोई बच नहीं सकता, वो जकड़ ही लेती है अपने जाल में। सो एनी फर्दर क्वेश्चंस? चलो, हरि ओम तत्सत।